Hey guys, a very good morning. Okay, so आज का message है on advertising and I'm gonna talk about Facebook ads. So if Facebook ads, online business building, that is your thing, then this message is going to make a lot of sense and will be helpful. So here's what I wanted to talk about specifically, and what I want to talk about is the targeting that people talk about in regards to when you are running Facebook ads. Interest targeting, right? कि हम interest choose करके targeting करते हैं, वो चीज, उसके बारे में बात करता हूँ आज. So मैंने बहुत लोगों को ये देखा है that they are still stuck with laser targeting. Okay, now I'll be very honest and I'll tell you, 3 साल पहले तक लेजर टारगेटिंग मैं भी करता था. ओके, मैंने करी है और मुझे सक्सेस मिलती थी उस चीज से. आई एम नॉट गोना बी लाइंग, दैट्स द ट्रुथ. लेकिन जब से iOS अपडेट आया है तब से लेजर टारगेटिंग काम करना बंद कर गई है. और उसका रीजन सिर्फ सीधे शब्दों में सुनो, आसान तरह से समझो. उसका रीजन ये है दैट व्हेन दैट iOS अपडेट केम, जो डेटा पॉइंट्स थे फेसबुक के पास, वो अब वैसे उतने एक्यूरेसी के साथ वो नहीं रहे. बिकॉज आप ये समझ लो कि एक मशीन थी, एक मशीन के एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मशीन के 3 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट iOS था. iOS से डेटा आना बंद हुआ तो वो मशीन चलनी बंद हो गई, बिकॉज 3 पार्ट्स थे, राइट? तो इसी तरह समझ लो कि जब iOS की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आया तो फेसबुक मेटा के पास वो डेटा की एक्यूरेसी लो हो गई, जिसकी वजह से टारगेटिंग वगैरह से मेजर कंट्रीब्यूशन आनी कम होती गई लोगों की. सो इफ यू आर अ पर्सन हु इज रनिंग एड्स फॉर योर क्लाइंट्स, और इफ यू आर रनिंग एड्स फॉर योरसेल्फ एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे लेजर टारगेटिंग करनी है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे लुक अलाइक ऑडियंसेस ये सब बनाने हैं, none of that is going to matter. And I'm telling you this because ये मेरे सिर्फ ये ज्ञान से नहीं, किसी बुक से पढ़ के, किसी को सुन के नहीं बोल रहा हूँ. मैं पिछले 2 साल हो गए मुझे एजेंसी रन करते हुए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं. मतलब मैं अनलिमिटेड गलतियां, ओके. और बहुत कुछ टेस्ट किया है मैंने, एंड मैं जेन्युइनली एज अ वेल विशर आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये मुझे पता है हाउ इट फील्स लाइक व्हेन यू डोंट गेट रिजल्ट्स, व्हेन यू हिटिंग दैट publish button and trying to send your ad for an approval and you don't get the results you desire. I know how it feels like, and I don't want you or anybody to feel like that, because इतने dreams हैं, इतने desires हैं जो हमारी associated होती है हमारी ad से, हमारे marketing से, हमारे business से. So lookalike audiences, okay, let me tell you, lookalike audience, interest based targeting, all of this is dead. This is so like 2020 kind of a thing. It does not work anymore. In fact, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास टाइम 5 अकाउंट्स हैं जो हम मैनेज करते हैं, okay, including one for ourselves that I run for ourselves, okay, that's one. So total 4 एक्सटर्नल मान लो, एक हमारा हो गया, 5 हो गए, 5 अकाउंट्स हैं, okay. क्या मैं और अकाउंट्स ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, मैं लेना चाहता नहीं हूँ. Okay, so it's not that I'm not looking forward to it, or I don't, or I don't have the option to get more accounts and handle more accounts. ऐसा नहीं है. मेरे पास आए दिन options आती हैं, people reach out to me, but I don't, because just I don't want to do it right now. So मैं आपको ये बता सकता हूँ अपने experience से, after spending a lot of money, my own money on advertising, converting that money into profit, helping our clients get qualified leads and sales and good number of sales through their advertising, helping them make a lot of money. I can tell you this out of my experience that all of these, and managing all these ad accounts, all of these accounts that we manage, our goal is just one thing to achieve from these accounts. When we start and where we want to take it, we only have one goal, and the goal is we want to tap into open targeting, which means no interest. Demographics में हम खेल सकते हैं, आप खेल सकते हो. प्लेसमेंट से अगर खेलना चाहो, वहां आप चीजें खेल सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक स्पेसिफिक डिवाइस को, जैसे आप सैमसंग के फोन्स को ही दिखाना चाहते हो एड, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो. बट दैट्स इट. वो भी अगर डिपेंड करता है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है, लोकल बिजनेस है, तो आपको शायद डेमोग्राफिक में खेलना पड़ेगा, रेडियस या टारगेटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस एरिया में दिखानी है. अदरवाइज अगर डिजिटल बिजनेस है, या पैन इंडिया बिजनेस है, या वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, हम
छूते भी नहीं है इंटरेस्ट को, आई डोंट इवन टच इट। एंड हमारा अगर कोई एड अकाउंट को हम स्टार्ट करते हैं और ओपन टारगेटिंग ब्रॉड टारगेटिंग पे उसको रिजल्ट नहीं आता, तो हम एक एक सिंगल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं, और फिर सिंगल इंटरेस्ट के बाद जैसे ही उसके अकाउंट के पास डेटा सेट में पिक्सल, जिसको पहले पिक्सल बोलते थे अब डेटा सेट बोलते हैं, जैसे ही डेटा सेट के पास इनफ डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब हम उसी चीज को उठाते हैं और फिर हम धीरे धीरे साथ साथ उस डेटा से ओपन टारगेटिंग टेस्ट करनी शुरू कर देते हैं, अगर स्टार्टिंग में हमें ओपन टारगेटिंग से रिजल्ट नहीं आता तो जब नहीं आ रहा तो हम सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग से मतलब ब्रॉड सा रखते हैं टारगेटिंग को, और ऐसे हम अपने अकाउंट्स को बिल्ड करते हैं। बिकॉज फ्यूचर गाइज ओपन टारगेटिंग ही है, आपको ये समझना पड़ेगा। एडवांटेज प्लस मेटा ने क्यों लॉन्च किया? व्हाई डू यू थिंक दे took that initiative of putting something out there like Advantage Plus? Advantage Plus का मतलब ही यही है कि वो चाहते हैं कि आप उसको इंटरेस्ट मत बताओ एल्गोरिथम को। क्यों कर रहे हैं वो? सोचो कभी, जस्ट थिंक अबाउट इट। और मेटा ही नहीं कर रहा है, सिर्फ गूगल भी कर रहा है। सो व्हाई डू यू थिंक द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स, both of them, Google and Meta, both of them are getting rid of it? The reason is because that's where the future lies. Because अगर आप कोई इंटरेस्ट सोच रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह से काम बन जाएगा, तो वो नहीं बनेगा। If there's anybody who is selling you this thing today, then I want you to be aware कि या तो वो एजेंसी रन नहीं करते हैं, वो डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट निशेस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एड्स रन नहीं करते हैं, इसलिए उनको नहीं पता, और या फिर वो करते ही नहीं है, वो सिर्फ एक कोई इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू वॉर्न यू बिकॉज इट डज नॉट वर्क। और अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप लेजर टारगेटिंग कर भी दोगे ना, आपको शायद इनिशियली रिजल्ट्स आ जाएंगे आज की डेट में, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं यू विल नेवर बी एबल टू स्केल विद पीस। एडवर्टाइजिंग अगर आपको पीस दे ही नहीं रही, इफ यू आर ऑलवेज एवरी डे यू वेक अप एंड यू have to optimize your ads like crazy, like anything, and it's taking away all your peace and your freedom, then what kind of a business is that? मैं आपको बता रहा हूं, मेरी टीम हमारा एक इंटरनल जो एक मीडिया बायर है, हम 2 ही लोग मीडिया बाइंग करते हैं, हमारे टोटल 4 लोग हैं, जिसमें से मैं एक हूं। मैं अब ज्यादातर ऑप्टिमाइजेशन करता हूं या स्ट्रेटेजाइज करता हूं, बिकॉज आई हैव अनदर पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट। बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मैंने जब ये टीम बिल्ड करी थी, मैं अपनी टीम की और खुद की हालत देखता था स्टार्टिंग में। वो पूरे दिन, हर दिन उठते थे, ऑप्टिमाइजेशन में लगे होते थे, कभी डुप्लीकेट कर दो एड सेट को, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी उसको ऑफ कर दो, कभी बजट 20% से ज्यादा बजट में इंक्रीज करो, 10% से ज्यादा इंक्रीज मत करो। एंड दिस एंटायर अप्रोच वाज सो नर्व रैकिंग कि उसने दिमाग खराब कर दिया था यार, कि ये तो जिंदगी खत्म है हमारी। मतलब हम एड अकाउंट के अंदर बैठ गए, और अगर कोई हाई स्पेंडर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्लाइंट था जिसमें एक हफ्ते में हमने ऐसा हुआ हमारा कि मैंने मैनुअल बिडिंग करी थी, और आई वांटेड टू टेक दैट अकाउंट फ्रॉम वेयरएवर इट वाज टू स्पेंडिंग अप टू 50,000। एक दिन में हमने एक बार 53,000 स्पेंड किए थे, तो बढ़ाता चला गया था मैं हर दिन, राइट, एंड एक हफ्ते के अंदर, और काफी पैसा स्पेंड करके। वॉल्यूम ही हमारा गोल था, कितना कॉस्ट हो रहा है वो गोल था ही नहीं। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा था, और मैं मैनुअल बिडिंग कर रहा था। बट वो सब चीज उस सारे एक्सपीरियंस से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये 2015 2020 नहीं है। इफ यू आर रनिंग फेसबुक एड्स एंड यू थिंक कि आप इस तरह से एक सिस्टमैटिक तरह से एड अकाउंट के बाहर जीकर अपना बिजनेस बना सकते हो, तो वो ये तरीके हैं ही नहीं। बिकॉज अगर आप लेजर टारगेटिंग करोगे, अगर आप मैनुअल बिडिंग करोगे, अगर आप कोई भी मेथोडोलॉजीज दैट जो काफी 2015 2018 में लोगों ने बनाई थी, जैसे स्नीक अटैक मेथड, अगर आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़े से एक्सपीरियंस हो तो, स्नीक अटैक मेथड, शॉटगन मेथड, ये सारे जो मेथड्स थे, वो अब बहुत मुश्किल है। लाइक इट्स अबाउट व्हाट डू यू वांट टू ट्रेड फॉर व्हाट, राइट? अगर आप पूरे दिन एड अकाउंट के अंदर बैठ सकते हो, अगर आपको लगता है कि हर दिन आप 2 घंटे निकाल के एड अकाउंट में, एक एड अकाउंट में दे सकते हो, तो 100% जाओ, ये कर लो, शायद आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस बिल्ड करते हो, इट इज वन थिंग टू रन एड्स, initially get success and celebrate that success, and it's another thing to scale that success. Because when you want to grow your business and scale the success, then you want systems, then you want things that can be repeated, which means वो बार बार कर सको आप, या आपकी टीम कर सके। और अगर वो सिर्फ इस चीज पे रिलाय करती है कि आप कितने अच्छे से डेटा को स्टडी करते हो, if that's the only factor that contributes to your success, if that's the only factor, then how much do you think your team will be able to help you? Because think about it, then that means you are just waiting for an incredible talent to come and grow your business. Hence,
this approach itself is faulty because it's never going to let you grow the business. And ये सारे realization मुझे मेरे business build करके client के accounts पे काम करके ही आया कि यार ये चाहे methods चल जाए लेकिन ये तो budget कभी आप ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकते, आप तो पागल हो जाओगे एड अकाउंट के अंदर. दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, दिस इज नॉट हेल्दी. इसीलिए फिर मैंने ये फिगर आउट करने पे लगा इस बात पे कि हाउ कैन वी मेक इट मोर पीसफुल, कि हम एड चलाएं कि अल्टीमेटली बिजनेस भी बना सके और ये सब नहीं करना. सो बहुत सारा इसमें ज्ञान है एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम कमिंग अप. लाइक इट टुक मी 2 years टू क्रिएट एवरीथिंग, द सिस्टम्स, द SOPs दैट आई हैव इंटरनली, and I'm going to be launching our product very soon, and I honestly will make it as economical as possible and बहुत ही economical करूँगा because I truly want to change the way and transform the way people are doing marketing, advertising on Meta especially because बहुत पुराने तरीके हैं और scalable नहीं है. That's the only problem. So yeah, I hope this message helps you, it inspires you, it guides you in the right direction. That don't geek over laser targeting, interest targeting. ये कोई secrets नहीं है. अपनी बढ़िया ads बनाओ, एड्स बनाने पे रिसर्च करो, उस पे अपना टाइम लगाओ, कैंपेन स्ट्रक्चर को मिनिमलिस्ट रखो, सिंपल रखो, ताकि कोई भी जाके उसको ऑप्टिमाइज कर सके, ताकि आप किसी भी बिगिनर को भी बोलो कि मेरी एड्स ऑप्टिमाइज करते हैं, वो भी कर सके. ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश करो बिकॉज वो अप्रोच जो है वो स्केलेबल होती है. और मैं सब करने के बाद ये मैसेज दे रहा हूं, सो आपको पता है ये रिलायबल सोर्स से आ रहा है. आई होप दिस हेल्प्स. लॉन्ग मैसेज, 11 minutes, आज तक का सबसे लंबा मैसेज, बट दैट्स इट. Yeah, I'm going to see you in the next video. Bye.